चलिए तो अब शुरुआत करते हैं थीटा नोटेशन से। अब इसमें थीटा नोटेशन की पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसके आने वाले पार्ट्स को देखेंगे। मैं बकायदा आपको विद एग्जांपल बना बना के दिखाता रहूंगा। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है। फंक्शन टी ऑफ एन, ये फंक्शन है टी ऑफ एन है, और ये फंक्शन इट इज नॉट नेसेसरी आप टी ऑफ एन ही लो। हम लोगों ने एफ ऑफ एन से पढ़ा हुआ है, आप एफ ऑफ एन भी ले सकते हैं क्योंकि मैथमेटिकली आप लोगों ने एफ ऑफ एन ही लिया हुआ है हर जगह। इज सेड टू बी, ये देखो ये थीटा है कि ओमेगा है, ये ओमेगा है, ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। इसको बोलने का तरीका ये रहेगा, जो बच्चा नया है मैं उनको बता दूं, ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। आई रिपीट, ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन डिनोटेड बाय टी ऑफ एन बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। यानी जो फंक्शन है, जो हम लोगों ने हाइपोथेटिकली लिया है फंक्शन टी ऑफ एन, वो बिलोंग करता है थीटा, और मतलब सॉरी ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। अब कंडीशन क्या है वो आप ध्यान दीजिएगा। इफ टी ऑफ एन इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो मतलब बाउंड मतलब क्या होता है, कहते हैं ना अपन कि मैंने उसे बाउंड कर दिया है काम करने के लिए, दैट मीन्स हमने उस पर प्रेशर डाल दिया, कंस्टेंट डाल दिया है। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, if t of n is bounded below by some constant multiples of g of n for all large n, that is if there exists some positive constant c and some non-negative integer n not such that, अब देखो कंडीशन क्या लगाई है इसने, t of n is greater than equal to c dot, it's a multiply sign, it means there is a multiplication between constant and this g of n function. Okay, so that means t of n is greater than equal to c of g of n for those, that means for all n is greater than or equal to n naught. There n naught is indicating the point of intersection, the last point of intersection. Let's see, then we'll decide. Okay, see over here, the this diagram you can see that there are two lines are going side by side, one of function f of n, or you can say t of n, and another one of c dot g of n. I repeat, there is a two functions t of n and c of g of n. Hopefully it is quite visible to all of you, and here you can see clearly a n naught line. This is the point of intersection line. I will show you by diagram. Once I will cover this topic, I will show you by manually drawing my own graph. Then you can easily understand that what is actually is going on. So in that case, t of n and c of g of n. As you knows that I have just intimated you about the t of n. Here you can see in the inequalities equation that t of n is greater than equal to c of g of n. That means whatever constant you will multiply with g of n, still it will remain smaller than t of n. That means the function of t of n is much higher as compared to c of g of n. So in nutshell, I can say that big omega notation, whatever the line will be moving from this graph, this is time versus n naught graph, where it will take much time comparatively to the c of g of n. Okay, now let me show you one more diagram of omega notation. Just give me a second. Hopefully it is visible to all of you. This is n. Okay, and let me show you the diagram of omega notation. Okay, this is the function which I was talking about. That means either you can name it as a f of n, or you can name it as t of n, whichever you like. It is not necessary that you are supposed to use f of n or t of n. You can use any function, but do not forget that you are supposed to take the same name in inequality as well. Okay, that's why I'm using f of n over here.
Now, another line which I was talking about is C multiplication sign with G of n. So in that case, it is quite visible that f of n is greater than or equal to C of G of n. Okay, and this point which I was talking about, this is the point of intersection between last point of intersection. Sorry, I'm repeating once again. This is the first point of intersection. This is the another one, and this is the last one. That means after intersecting at this point, the f of n is not going to intersect anymore anyway in this line of C of G of n. Are you getting my point? So in that case, we can name it as a n naught. Okay, and by mathematically, I can write over here f of n, or you can say t of n, both of them having the same meaning, because, and this one is omega of G of n. I repeat, do not forget how to call this function and how to illustrate these notations in mathematically format. Okay, so this is all about omega, and let's move forward for our next lecture, that is theta notation. Hopefully the doubt has been cleared to all the students. Let me know. You can unmute yourself and you can acknowledge. सर ये अभी वाला बायो में का बता दो सर। जी, ओमेगा फिर ये बता दो। ये अभी आपने हाँ, एक बार और बता। ठीक है ठीक है ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से दिखाया एन नोट, दैट मीन्स ये इनिशियल पॉइंट है। एक्चुअली इससे पहले कितने ही इंटरसेक्शन हो चुके होंगे इस लाइन के, ठीक है। ये जो दो फंक्शंस की जो लाइनें जा रही हैं, ये इंटरसेक्ट हो चुके हैं कई बार, मगर मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जहां पे लास्ट इंटरसेक्ट हुई है लाइन, ये वहां का पॉइंट जा रही है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं दोनों पैरेलल तो जा रही हैं मगर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। एंड दिस इज व्हाट द सोल रीजन। आप देख रहे हो टी ऑफ एन वो इसकी साइज से ऊपर है, इसलिए अपन ने जो इसका टर्म और जो कंडीशन ली थी ना, वो देखिए ग्रेटर देन ले रहे हैं, क्योंकि टी ऑफ एन बड़ा है। ये देखिए फिर से देखिए, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखो टी ऑफ एन बड़ा है, इसलिए इसको अपन ने फंक्शन लिया। अब समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। ये है थीटा नोटेशन। अब थीटा नोटेशन के बारे में देखते हैं, फिर इसका भी हम डायग्राम के समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थीटा नोटेशन में, अ फंक्शन t of n is said to be theta of g of n। मैं फिर से रिपीट करता हूं बोलने का तरीका, थीटा ऑफ g ऑफ n, ऐसे बोलेंगे। यानी ब्रैकेट जहां पे लग रहा है ना, आपको स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आप ऑफ बोल देना, थीटा ऑफ g ऑफ n denoted by t of n belongs to theta of g of n, comma if t of n is bounded both। ये ध्यान रखना, दैट मीन्स हमने बिग ओहो देखा था, बिग ओहो में क्या था, वो लेस देन था। हम लोगों ने ओमेगा देखा, वो ग्रेटर देन था। सो इन दैट केस ये उनके बीच में रहने वाला है, यानी कि दो फंक्शंस होंगे, दो कांस्टेंट होंगे, उनके बीच में रहने वाला है। is bounded both above and below by some positive constant multiples of g of n for all large n। That is, if there exists some positive constant c1 and c2 and some non-negative integer n naught such that, अब आप यहाँ कंडीशन देखिए मैथमेटिकली, ये t ऑफ n है, मैंने अभी बताया था ये उन दोनों के बीच में एज अ सैंडविच रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था, ये वाली जो कंडीशन आपको दिख रही है, t ऑफ n लेस देन इक्वल टू c1 g ऑफ n, ये वाली कंडीशन हमारी बिग ओ में थी, ठीक है। और c2 g ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू t ऑफ n, ये वाली कंडीशन हम लोगों ने बिग ओमेगा में देखी थी। अब ये कंडीशन तो हमें पता ही है, n जो होगा वो n नोट से बड़ा होना चाहिए, n नोट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। अब यहाँ देखें आप, ये जो आपने लाइन देख रहे हैं, ये t ऑफ n देखो बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में है, c1 ऊपर है, c2 नीचे है, और ये बिल्कुल बीच में पैरेलल चल रहा है। अब आपको ऐसे हो सकता है समझ में नहीं आए, अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं आपको, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे।
देखिए नया ले लेता हूं, ये हो गया अपना n, ठीक है। और अब दो लाइन बना लेते हैं अपन। देखिए ये मैंने लाइन बना दी है। अब मैं इनका नामकरण कर देता हूं। लेट से ये मैंने C1 ले लिया, लेट से g ऑफ n, ठीक है। C1 कांस्टेंट था। अब यहाँ पे वाला ले लेता हूँ, ये ऊपर वाला C2 मल्टीप्लीकेशन साइन, ठीक है। C2 डॉट जी ऑफ n, और ये वाला जो था ये f ऑफ n। मैं f ऑफ n इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने f ऑफ n से पढ़ा है हमेशा, और आप लोगों के लिए मैं t ऑफ n भी बोल दूंगा। जो भी अल्फाबेट आप लेना चाहे उसे बोल दें। अब आप नोट कीजिएगा यहाँ पे लास्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है। यहाँ पे एक तो यहाँ हुआ है, एक यहाँ हुआ है, मगर जो लास्ट हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, तो दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला लाइन ये रहा, ये इसको बोलेंगे n नॉट। इसके बाद आप देख रहे होंगे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है लाइन, सो इन दैट केस आप क्या बोल सकते हैं, जो हमारा f ऑफ n है वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे लिख दीजिएगा f ऑफ n बड़ा है किससे, c ऑफ 1 से, c1 डॉट g ऑफ n। आपको देखिए ग्राफ में आप जब देखोगे देख रहे होंगे यहाँ पे ये बड़ा है, ये देखो ये बड़ा है, देख रहे हो ये बड़ा है C1 से, और C2 इससे बड़ा है, तो यहाँ C2 लिख दो, जो C2 डॉट G ऑफ N, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया कि जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसके बाद से ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है और लाइन ऐसे ही इनफाइनाइटली जा रही है। ये हम लोगों ने असिम्प्टोटिक नोटेशन देखा। और इससे पहले मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी भी बता चुका हूं। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइएगा। कॉम्प्लेक्सिटी और केसेस भी बता चुका हूं। अब देखिए आपको थ्योरम दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है, ये कैसे हो रहा है, मगर ये हाँ हेलो प्रॉब्लम है, बोलिए। हाँ कोई कुछ कह रहा था। कॉम्प्लेक्सिटी में सर प्रॉब्लम आ रही है। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए। कॉम्प्लेक्सिटी वो का नाम ही उसमें सर प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। वो ये समझ ही नहीं आ रही, कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आ रही। जो किया तो उसमें कुछ आया ही नहीं। क्या क्या नहीं आया। रिवाइज किया तो सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब बहुत अच्छी बात है, चलो रिवाइज तो किया। चलो अब यहाँ देखते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये रहा कॉम्प्लेक्सिटी। ये 2 टाइप्स की होती हैं। अब दिख रही है विजिबल है। यस सर। एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए ये बात समझ में आ गई। कॉम्प्लेक्सिटी कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की, हाँ कौन कौन सी। टाइम और स्पेस। टाइम एंड स्पेस। स्पेस। हाँ अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जब समझाया था, याद आ रहा आपको, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था तो मैंने कुछ नाम लिए थे कि इनकी परिभाषा ये है। याद आ रही है किसी को, कोई भी एक जना, कोई भी। मैंने एक परिभाषा सिखाई थी इसकी, कोई भी बता दो बच्चों। कि हमारे कंप्यूटर जब कोई सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो प्रॉब्लम कोई से भी तरीके से हो सकती है। आप कोडिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी
क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, इडियट होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, वो वही करेगा जो आप उसे बोलोगे करने को, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, इन कॉम्प्लेक्सिटी को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। आई रिपीट, कॉम्प्लेक्सिटी को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नाम, वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन ये होती है, मैं हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में बताऊंगा। किसी भी प्रॉब्लम को या किसी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को रन करने में, आई रिपीट, किसी प्रॉब्लम को रन करने में या एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ये हिंदी की डेफिनेशन। अब मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बताता हूं। किसी प्रोग्राम को, किसी एल्गोरिथम को या किसी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए वो जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, आई रिपीट, उसमें टाइम लेता है, इसमें स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो स्पेस रख रहा है, यानी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है आपके हार्ड डिस्क में या रैम में। तो जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है उसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम represents the amount of memory space needed the algorithm in its life cycle या to run a program, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एक तरीके से और बोल दें यहाँ पे, स्पेस नीडेड बाय एन एल्गोरिथम इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू कंपोनेंट्स। और वो टू कंपोनेंट्स कौन से हैं, वो होते हैं फिक्स पार्ट, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, रुकिए आप, इसको भी दो भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। और वो कौन कौन से हैं, एक है फिक्स्ड पार्ट और है वेरिएबल पार्ट, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करने के लिए दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स पार्ट और एक होता है वेरिएबल पार्ट। अब इसके मैं थोड़ा अंग्रेजी में बताता हूं फिर हिंदी में बताऊंगा। A fixed part that is space required to store certain data and variable that are not dependent of the size of the problem। जैसे कि एक प्रोग्राम बनाने के लिए जो आप कांस्टेंट वैल्यू लेते हो, कांस्टेंट वैल्यू साइज ऑक्यूपाई नहीं करता है, वो प्रोग्राम की साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने एडिशन का प्रोग्राम बनाया, बहुत ढंग से सुनना, मैंने कांस्टेंट वैल्यू ले ली, जैसे हम लोग करते थे, डिफाइन करते थे, याद आ रहा है, हैश डिफाइन, याद आ रहा बच्चों, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो उसमें क्या करते थे, उसे हम मैक्रो बोलते थे, याद आ रहा हो तो आपको। उस मैक्रो में अगर मान लो मैंने वैल्यू ले ली 2 करोड़, आई रिपीट 2 करोड़, या फिर चलो हटाओ करोड़ छोड़ो, बिलियन या मिलियन में ले लेते हैं, 2 बिलियन ले लेते हैं। और 2 बिलियन तो बहुत बड़ी साइज हो गई। अब एक चीज बताइए, जब मैंने 2 बिलियन साइज की कांस्टेंट वैल्यू ली है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भर देगा वो, क्योंकि कांस्टेंट लिया है मैंने ना। एक्चुअली में जो आपका प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम को जब आप सेव करते हो वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, वो बोलेगा फिक्स पार्ट। समझ में आ गई बच्चों। अब आता है वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट क्या होता है, स्पेस रिक्वायर्ड बाय वेरिएबल्स हुज साइज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ले लूं, ये होता है, इसका एग्जांपल मैं बोल देता हूं आप लोगों को, डीएमए, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन, डीएमए, डायनामिक मेमोरी अलोकेशन, ठीक है। डायनामिक मेमोरी अलोकेशन इसका एग्जांपल है। रिकर्जन, या आप सी में पढ़ चुके हो, रिकर्जन, इसको स्टेट स्पेस भी बोल दो, मैं तो रिकर्जन बोल रहा हूं, ठीक है, और एक्सेट्रा, ये सब जो हैं इसके एग्जांपल्स हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ये सर पढ़ा चुके हैं आपको, इसलिए अपन शायद इसमें टाइम वेस्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये फिक्स पार्ट का भी मैं लिख ही देता हूँ एग्जांपल। कोई सिंपल वेरिएबल, कांस्टेंट प्रोग्राम की साइज एक्सेट्रा। ये समझ में आ गया बच्चों अच्छे से।
अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखो किस तरह से डिफाइन करेंगे ये, मैं एक और ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन करने का तरीका है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम बोलेंगे एस, ठीक है, कैपिटल एस और ब्रैकेट में पी इक्वल टू ए प्लस एस पी आई, ठीक है। ये मैथमेटिकली हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन क्या क्या है सुनिए, एस पी हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी प्रॉब्लम पी, या फिर ऑफ एनी एल्गोरिथम पी, एल्गोरिथम बोल दीजिए, यहाँ पी जो है एल्गोरिथम है, ठीक है, उसको इस तरह से बोला अपन ने। और ए क्या है यहाँ, ए इज ट्रीटेड एज फिक्स्ड पार्ट, ठीक है। मैं जरा इसको इस बार यूज कर लेता हूं, ये जो है फिक्स्ड पार्ट, फिक्स्ड पार्ट एफ पी, ठीक है। एस आई इज ट्रीटेड एज वेरिएबल पार्ट, एस आई इज ट्रीटेड एज वेरिएबल पार्ट, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। ये फिक्स्ड पार्ट वेरिएबल पार्ट को जब आप ऐड कर देते हो तो क्या निकलता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। एग्जांपल दिखाऊं इसका एक, yes, sir. चलिए मैं दूसरा कलर से ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा सम, ठीक है, एडिशन की मैं एल्गोरिथम बना रहा हूं, मैं दो वेरिएबल को ऐड करता हूं पी कोमा क्यू को, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट, ये होता था स्टार्ट, इस तरह से लिखेंगे अपन, मैं बताऊंगा आपको एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। पहला एल्गोरिथम ये फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे आर, ये एक नया वेरिएबल ले लिया मैंने आर, इसमें पी और क्यू को मैं ऐड कर रहा हूं, साथ में एक मैंने कांस्टेंट भी ले लिया, मान के चलिए ये मैंने ऊपर मैक्रो से लिया है। आपको पता है ना मैक्रो क्या होता है, कोई एक जना बता दो मुझे मैक्रो क्या होता है। और थर्ड पॉइंट, जब तक मैक्रो बता दो, सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिफाइन करने के तीन तरीके होते हैं, एक मैक्रो होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्ट वेरिएबल यूज करके, ठीक है, और एक नॉर्मली आप यूज करते ही हो। अब इधर देखिए, इसका मतलब होता है हैश डिफाइन, आप लिखते हैं ना हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, यहाँ पे लिख दो हैश डिफाइन, और यहाँ पे पाई लिखते थे, फिर पाई की वैल्यू 3.14 ऊपर लिखते हैं आप, तो उसकी पूरी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में लिखोगे तो यही रहेगी इंटैक्ट। इसको बोलते हैं मैक्रो, जिनको नहीं पता मैंने उनको बता दिया बेटा, है ना, इसको मैक्रो बोलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे प्रोग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, ये मैंने एक प्रोग्राम प्रोग्राम बना दिया है, आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया सम नाम का, उसके अंदर मैंने उसके अंदर पैरामीटर्स ले लिया पी कॉमा क्यू नाम के। सबसे पहले मैंने एल्गोरिथम को स्टार्ट किया, फिर मैंने सीधे उनकी लॉजिक लगा दिया। लॉजिक क्या लगाया मैंने, कि एक वेरिएबल लिया मैंने आर, उसमें मैंने दो ऐड कर दिए वेरिएबल पी कोमा क्यू, आप देख ही रहोगे ये रहे पी कोमा क्यू, इनको मैंने ऐड किया, मगर मैंने कुछ हटकर एक काम और कर दिया, मैंने इसमें कांस्टेंट और डाल दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं ये कर रहा हूं, हम लोग करते थे ना मैथमेटिक्स में लिखते थे हम लोग, क्या करते थे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखते थे, ये वैसा ही मान के चलिए आप, बस मैंने इसमें 10 और ऐड कर दिया, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बच्चों बताओ, आई गेस होना तो नहीं चाहिए इशू, मगर ये मैंने किया है। अब देखिए पी प्लस क्यू को मैंने डाल दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, आर जो है ये सब कांस्टेंट, ये आर पी क्यू आर ये सब वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और इसमें एक कांस्टेंट है, ये देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये आर, ये पी, ये क्यू, ये सब तो वेरिएबल है, ये मैं वी बोलता हूं इनको, और जो कांस्टेंट है उसको मैं सी बोल रहा हूं। इसका मतलब मैं यहाँ पाई की जगह 10 लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप बोलो सर ये मैक्रो से करके दिखाओ, तो मैं मैक्रो से ज्यादा क्या करता है, यहाँ पे मैं इसको लिखता आर पी प्लस क्यू प्लस
मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3.14 की जगह 10 दे दिया और पाई की जगह मैंने लिख दिया इसको a, तो मैं यहाँ पे a लिख दूंगा। जैसे मैं a लिखूंगा ना तो यहाँ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा a इज अ कांस्टेंट और a की वैल्यू ये है। समझ में आ गई? अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? एस ऑफ पी, पी जो है कि एल्गोरिथम है, ए क्या है? फिक्स पार्ट है, फिक्स पार्ट है यहाँ पर। क्या है फिक्स पार्ट? कांस्टेंट। कितने कांस्टेंट है? 1 प्लस वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे? वेरिएबल है 3। कांस्टेंट कितने हैं? 1। तो इसका मतलब 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। इसका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई? 4। आंसर। बच्चों समझ में आ गया? समझ में आ गया यार। है? अच्छे से आ गया सभी को? यस सर। हर्षित, यस सर। सुनंदा, यस सर, क्लियर है। मिताली, बादल, यस सर। हितेश, अच्छे समझ में आ Yes, गया sir. बेटा? किसी को डाउट हो तो पूछो। और हाँ, एक साहिल दिख रहा है बच्चा, एक साहिल। साहिल बेटा तुम्हारी पहली क्लास है। तनय, कोई डाउट है बेटा? तुषार, अनम्यूट करें और बताओ। ये समझ में आ गया सर। किस तरह से निकलता है? समझ में आ गया ना? ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ये रहा। आगे सर, आगे सर। फोटो खींचना है, फोटो खींच लीजिए इसका, ताकि आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल रहेगा। इससे क्लियर तो क्या कोई बता पाएगा यार? मैंने 2 तरीके बता दिए कांस्टेंट के, यहाँ पे 3 तरीके होते हैं कांस्टेंट। कभी सी पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि हायर क्लास है तो इसको पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। शैल आई मूव फॉरवर्ड? चलिए ठीक है। ये एल्गोरिथम भी देख ली, फोटो खींच लिया होगा आप सभी ने, या एक जना खींच लीजिए और सबको शेयर कर दीजिएगा। अब मैं इसे अंडू कर रहा हूं। जैसे ही अगर बच्चों कहीं पर डाउट लगे तुम्हें तो बता दिया करो, ठीक है? अब इससे ज्यादा भी अलाउ नहीं कर रहा। आप लोग बच्चों रिवीजन जरूर करना इसके बाद, वरना आप लोग भूल जाओगे क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे आप लोग ये मान लीजिए गेट में सबसे ज्यादा वेटेज के होते हैं ये डेटा स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, आगे जो सब्जेक्ट आएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ऑल। ठीक है, चलिए इसको थोड़ी देर रहने देते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या है। अब आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। मैंने आप लोगों को बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन देख लीजिए। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम is the representation of the amount of time required by the algorithm to execute a completion या to execute a program। किसी प्रोग्राम को रन कराने में जितना समय लगता है ना, उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी डिफाइंड एज फंक्शन टी ऑफ एन। इसको टी ऑफ एन की तरह मान के चलिए आप। मैं आप लोगों को वो सारे इजी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं जो आप लोगों के लिए आसान हो, अंडरस्टैंडेबल हो। तो उसको मान के चलिए आप टी ऑफ एन डिफाइन कर रहे हैं, वेयर T of n can be measured as the number of steps provided each step takes constant time। That means ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना, हर स्टेप, ये देखो हर स्टेप, इसको स्टेप्स बोलते हैं बेटा। ये पहला स्टेप यहाँ प्रोग्राम रन हुआ, दूसरे स्टेप लॉजिक लगाया, तीसरे स्टेप में खत्म कर दिया, तो इनको बोलेंगे हम लोग। फिर से बोलता हूं, वेयर T of n can be measured as the number of steps, ये ध्यान रखिएगा, can be measured as the number of steps provided each steps takes constant time। इसकी तरीके से अगर माना जाए तो सब एक कांस्टेंट टाइम ले रहे हैं। दैट मींस ये 1 सेकंड ले रहा होगा, ये भी 1 सेकंड ले रहा होगा, ये भी 1 सेकंड ले रहा होगा। समझ रहे हो आप? इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ 2 n बिट इंटीजर्स, अगर 2 n बिट इंटीजर को लेते हैं तो क्या होगा? n स्टेप्स आर टेकन। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला था a इज इक्वल टू b प्लस सी, ये 2 वैल्यू हैं, इनका एडिशन का प्रोग्राम हम लेते हैं, है ना? और यहाँ पे तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2n बिट वैल्यूज, तो ये 2n बिट वैल्यूज यही होंगी। अब इसमें क्या होगा? n स्टेप्स आर टेकन, इसमें n स्टेप्स लेके लिए गए हैं। n स्टेप्स मतलब ये है 2 भी, 3 भी, 4 भी, जितने भी हो। तो कॉन्जिक्यूटिवली द टोटल कंप्यूटेशनल टाइम, इसको अपन इस तरह से मेजर करेंगे, t ऑफ n इक्वल टू c into n। ठीक है, where c is the constant, n is the number of times, where c is the time consumed। देखो मैंने कहा था where c is the time consumed
for addition of 2 bits. Here we observe that t of n grows linearly as input size increases. As input size increases. यहां पे किसी को टाइम, और सॉरी टाइम नहीं, किसी को डाउट हो तो पूछो। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट आ रहा हो, जो पूछना चाह रहा हो, तो बच्चों वो पूछ सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये जो आपने वापस ये समझाया इसको वापस समझा दो। ठीक है, इसके अंदर क्या है मैं फिर बताता हूं। आप, मैं लेमन की भाषा में समझाता हूं। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए इसको रन कराने में। जैसे देख लीजिए, यहां मैंने लिखा स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया। यहां मैंने लिख दिया पी क्यू की जगह आप ले लीजिए ए बी, और दूसरा हो गया स्टॉप। ये 3 लाइन लिए मैंने, है ना। मैंने ये 3 स्टेप्स लिए, 3 स्टेप्स। और आप लोगों को अभी भी मैंने बताया था सी टाइम कंज्यूम्ड है, और ये जो एन है नंबर ऑफ कितने स्टेप्स हैं, स्टेप्स और टाइम टेकन बाय देम। तो अब आप देखिए एन नंबर लिए गए, लेट्स से यहाँ पे 3 लाइनें ली गई, तो इसको 3 स्टेप्स दिख रहे हैं आपको। मैंने ग्रीन से क्या हुआ 1 2 3, तो 3 इंटू एन, नंबर ऑफ स्टेप्स एन थे ना, तो इसको एन ही रहने दो। तो इसका इक्वेशन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 3n हो गई। बात समझ में आ गई। इसका आंसर हो गया ये t ऑफ n, मतलब t ऑफ n इज इक्वल टू 3 ऑफ n। ठीक है, इस तरह से इसकी इक्वेशन बनती है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती होंगी जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि ऐसे भी आएंगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ log n। अगर ऑर्डर ऑफ n होगा तो इसका क्या मतलब है देखिएगा। मान लीजिए एक पेन आपने खोला, एक पेन का एग्जांपल लेते हैं। पेन का जो कैप होती है ना, किसी बंदे से बोला क्लास में कि आप इफ यू आर हैविंग अ पेन वुड यू प्लीज ओपन दैट। ठीक है, वो पेन को एक बार नहीं कईयों बार खोलता है, कईयों बार मतलब जब भी पेन यूज होगा वो खोलेगा, वापस जेब में रख लेगा। ठीक है, अब तुम क्या करो, उस बंदे के साथ कुछ उसकी क्लास में जितने भी बंदे हैं उनसे भी बोलो कि आप अपने अपने पेन को खोलिए, ऑन ओपन कीजिए। अब आप वो पेन को ओपन करेंगे फिर बंद कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, खोलेंगे तो बंद भी करेंगे। तो ये जो कंडीशन हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई, एन स्क्वायर हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कैसा, मैं आगे फिर क्या है कि ये तुम्हारे सिलेबस में भी है नहीं, वरना मैं इसको पूरे डिटेल में बताता। तो इसमें अपन को टाइम लेने से ज्यादा मतलब नहीं है। बस आप ये चीज ध्यान रखिए कि जो आपके काम की चीज है, जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उन नंबर ऑफ स्टेप्स को टाइम टेकन बाय देम, टाइम कितना लिया 1 2 3, नंबर ऑफ स्टेप्स थे 3, तो आप लोगों ने क्या किया 3 इंटू एन 3n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 3 ऑफ n। समझ में आ गई बच्चों। बच्चों यस यस सर। सर आगे। है ना। अब देखो, इसमें चाहो तो मैं और भी बता सकता हूं, तुम्हें बताऊं क्या आगे, मगर टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए क्या आ गया यहाँ पे, आई गेस आज के लिए बहुत है, ये सब बता दिया मैंने। ये देखो, इधर देख लीजिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी एसिम्प्टोटिक नोटेशन ऐसा है 1 आ रहा है, जैसे मैंने लिखा था टी ऑफ एन, अगर किसी की बिग और नोटेशन या फिर कॉम्प्लेक्सिटी 1 आ रही है तो वो कांस्टेंट वैल्यू के लिए है। लॉग एन आ रहा है तो लॉगरिथमिक है। एन आ रहा है तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है। एन लॉग एन है तो एन लॉग एन ही रहेगा। एन स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, एन क्यूब है तो क्यूबिक है, 2 टू द पावर एन है तो एक्सपोनेंशियल है, और एन फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और इसी के साथ